Yes, so once again, good morning to everyone. And we had started with introduction to finance and financial management. And these are all the things that we need to cover in this chapter. We had started with meaning and now three types of finances. See, if you talk about finance, there are three types of finances. Now, because it involves many things. So it is not only related to one particular individual. If you put your money in bank, so it comes in economy, no? It is reflected in economy. That money is rotated. That money is circulated. It comes from it goes out from your hands and it comes to the bank. Now bank will put this money maybe somewhere else. Suppose say if I need a bank loan, so the bank will provide me the loan amount. So bank will not provide the loan amount from their own pocket. अपने जेब में से तो निकाल के नहीं देते हैं. So what they do, जो पब्लिक डिपॉजिट देती है उन्हें, वही पैसा सर्कुलेट होके लोन के फॉर्म में किसी और के पास जाता है. Is it clear? So therefore three types of finances are there, because अगर आप इंडिविजुअल होके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जिस कंपनी के पास, जिस बैंक के पास, जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास वो जा रहे हैं, फंड्स वो जा रहे हैं, वो कंपनी फिर आगे इकोनॉमी में रोटेट करती है वो. ठीक है. तो पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? सो नंबर 1 इज पर्सनल फाइनेंस, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द थर्ड वन इज पब्लिक फाइनेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल, जो मेरा खुद का इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो फाइनेंस. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस द करंट फाइनेंशियल पोजीशन of individuals. So this word is very important, individuals. Okay, so financial position बताता है आपकी, सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. सपोज यू हैव 1 crore, आई हैव ओनली 10 lakhs. सो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ना उससे. टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर नीड्स. तो हमारे पास ये कैश, ये जो फाइनेंस पड़ी है, उसका क्या पर्पस होता है कि हमारी जो फ्यूचर नीड्स हैं वो फुलफिल हो. अच्छा, जितनी होंगी उतनी फुलफिल होंगी. Therefore, it is said that within financial constraints. Within financial constraints मतलब जितना आपके पास होगा उतनी आप अपनी needs को fulfill कर पाएंगे ना. For an example, if your dad is giving you 40,000 rupees and my dad is giving only 20,000 rupees, so you will be able to buy anything which is worth of 40,000. But if you look at me, I will be able to buy that particular same thing, but I will have to invest only 20,000 because I have only 20,000 in my hand. Suppose you and me are going to buy mobile phone. You will be able to buy a mobile phone which is worth in the market equivalent to rupees 40,000. But I can buy only for 20,000 because my budget is not over and above 20,000. Is it clear? So this is my individual finance. As to how much I have to see, I have to notice, I have to observe rather, as to how much I will be able to invest in the future. Okay, so personal finance is specific to every individual society. It is subjective, no? See, you have 40,000, I have 80,000. Somebody may have 1 lakh. Another people may have, you can say, more than 1 lakh. Okay, some may have crores of rupees. Okay, so it is subjective in nature. Specific means subjective in nature because it varies from person to person, no? And therefore the standard of living also differs from person to person because of this personal finance. ठीक है. उनके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं हर एक के अलग अलग होते हैं, इनकम्स होती हैं हर एक की अलग अलग होती हैं. ठीक है. It is therefore said that it is specific to every individual situation and activity. ठीक है. अभी ये डिपेंड किस पे करता है? These financial strategies largely depends on finance, personal earnings. मैंने अभी आपको बताया, आपकी खुद की इनकम,
लिविंग रिक्वायरमेंट्स मतलब आपको खर्चे कौन कौन से करने हैं, कैसे आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपके गोल्स डिजायर्स फ्यूचर के लिए क्या क्या है। कोई चाहता है अभी देखो आगे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इफ यू विल रीड, कोई चाहता है मैं रिटायरमेंट के लिए सेव करूं पैसा, तो कोई चाहता है मुझे आज के लिए इनफ मनी कम पड़ रही है तो मैं सेव कहां से करूं। ठीक है, सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नो, मेरे पास काफी सारा है एंड देयरफॉर आई एम प्लानिंग फॉर माय रिटायरमेंट, तो मैं आज से सेव कर रही हूँ। बट अगर इन केस मेरे पास उतना ही नहीं है कि आज भी मैं उतना चल सकूं, खा सकूं, खर्चे कर सकूं, अपनी फैमिली के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर सकूं, so I will not be able to save much in the present times, no? Are you guys understanding? Yes, ma'am. Yes, so it depends on your saving requirements. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या क्या है, एसेस द करंट फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब ये आपको आपका ना करंट फाइनेंशियल स्टेटस चेक करके बताता है, एसेसिंग मतलब चेक करना। ठीक है, उसके बाद आपको बताएगा आपकी सेविंग्स कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो मतलब दोनों चीजें होती हैं इसमें, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब आपकी इनकम्स कितने और आपके खर्चे कितने हैं। ठीक है, बाइंग इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, अब आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसीज भी खरीद सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग एंड फाइलिंग टैक्सेस, ठीक है, आप ज्यादा इनकम अर्न करते हैं तो टैक्स के स्लैब में भी आते हैं, इसीलिए आपको टैक्स भी भरनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी टैक्स भरनी चाहिए हमें। अब हमें तो नहीं आता है, इसके लिए एक एक्सपर्ट अपॉइंट होता है जिसे कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके इन्वेस्टमेंट्स का कैपेसिटी कितना है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ये सब तो पर्सनल फाइनेंस से ही पता चलेगा कि कितना मैं सेव कर सकती हूँ, कितनी मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 25 ईयर्स में मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे सेव करना है तो कितना कर सकती हूँ मैं, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर, सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल फाइनेंस नो, मेरे खर्चों और मेरी इनकम को देखते हुए, keeping in mind all my incomes and expenses. So now let me come to the next finance, that is corporate finance. नाम से ही समझ में आ रहा है, personal means individual, my own. But when I'm talking about corporate finance means companies finance, business की बात चल रही है अभी, एक particular individual की बात नहीं चल रही है। Okay, so business finance obtains financing through variety of means. Means मतलब sources. अलग अलग जगह से आपके पास फाइनेंस आता है ना, जैसे इक्विटी से भी आ सकता है, प्रेफरेंस से भी आप कलेक्ट कर सकते हो फंड्स, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में लगा दो, जो जो खरीदेंगे वो आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो मतलब कॉमन सेंस है, शेयर होल्डर कंपनी को क्या देते हैं, फंड्स ही तो देते हैं, तो यही तो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और क्या होता है। अच्छा, अगर कम पड़ गई इक्विटी और प्रेफरेंस मतलब प्रोप्राइटर फंड्स होते हैं ये, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी आप सीखेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट में। ओके, सो दैट कम्स इन प्रोप्राइटर फंड्स, मतलब मेरे खुद के फंड्स, पर कंपनी के पास खुद के फंड्स कम पड़ गए, बिजनेस के पास खुद के फंड्स कम पड़ गए, सो व्हाट यू टू डू, व्हाट आर यू आर रिक्वायर्ड टू डू, कोई बताएगा, बिजनेस बंद कर देंगे, विल यू शट डाउन द बिजनेस, पैसा कम पड़ जाए तो। No, ma'am. No. So what will you do? What will be the next step if you are Take a facing loan. shortage of funds? Very good. Very good. You will opt for a loan. Maybe from bank, maybe from any other company, maybe from director, maybe from any other source. But you will opt for loan, debt, जिसको कहते हैं debt. Acquiring and managing लिखा हुआ है देखो थर्ड लाइन पे. Acquiring and managing debt properly can help a company expand and become more profitable. इतना भी लोन नहीं ले लेने का कि कंपनी बैठकर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है और प्रॉफिट तो हाथ में कुछ बच ही नहीं रहा है. That should not be the situation, huh? You need to have a balance between the two, proprietor and borrowed funds. There are two funds. There are two types of finance in the corporate finance. Proprietor finance, that means my own capital which is invested in the business with the help of shareholders, and the other finance is debt funds. Debt means loan, debentures, bonds,
These are the finances which are also known as debt finance. Debt means it is a type of corporate finance only. It comes under the heading of corporate finance only. It is written in the first paragraph. You will read and you will come to know. Take a minute to read this first point. You will come to know about that. See, it is clearly written. A firm might take out a loan from a bank or arrange for a line of credit. Line of credit means other type of credits. Credit means loan. यहाँ पर जो बात चल रही है क्रेडिट की, वो लोन की बात चल रही है कि थोड़े टाइम के लिए आप उधार पे पैसा ले सकते हो. अरेंज फॉर अ लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स वेरियस टाइप्स, लाइक सिर्फ बैंक लोन ही नहीं होता है. डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी एक तरीके के डेट ही होते हैं. एक टाइम के बाद कंपनी को रीइंबर्स और यू कैन से रीपेमेंट करना पड़ता है. इज दैट वेरी क्लियर? प्लीज रिप्लाई एवरीवन. I want to hear. I want to hear from everyone. Come on. Yes, no. Yes, ma'am. Yes. Yes, Very ma'am. good. Very good. That's the spirit. Very good. चलो देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. Corporate finance refers to financial activities related to running a corporation. अब आपके पास तो बहुत सारा कॉर्पोरेट फाइनेंस जमा हो गया ना अब आपके पास, प्रोप्राइटर फंड से, बोरोड फंड से. अब आपको ये फंड्स जो जमा हुए हैं उसमें से एस्टिमेशन करना है कि कैसे मुझे कॉर्पोरेट को चलाना है, कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब ट्रांजैक्शन करूं सो दैट मेरा बिजनेस फ्रूटफुली मुझे प्रॉफिट्स ऑन करके दे. फ्रूटफुल होना चाहिए ना आपका बिजनेस, वर्थ होना चाहिए ना वो इन्वेस्ट करना कहीं पे भी. अब आपके पास शेयर होल्डर्स का इतना सारा पैसा है, बैंक लोन से आपने करोड़ों लाखों रुपए लोन ले लिया. अब वो फंड्स का करना क्या है? डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे मुझे डिसाइड करनी चाहिए सो दैट द बिजनेस इज कैरीड ऑन स्मूथली. ठीक है. नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज कंपनी में हैव टू डिसाइड वेदर टू रेज एडिशनल फंड्स, मतलब मुझे फंड्स और चाहिए थ्रू बॉन्ड इशू, स्टॉक ऑफरिंग, मतलब और भी शेयर्स में मार्केट में लगाऊं, या बॉन्ड्स इशू करूं, डिबेंचर्स इशू करूं, कि बैंक लोन लूं. किस तरीके से फंड्स को मुझे रेस करना चाहिए जब कंपनी को नीड पड़ती है तो. ठीक है. तो इसमें ना आपको इन्वेस्टमेंट बैंक है ना बड़ी हेल्प करती है. इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होती है? ये वो बैंक होती है जिसमें हमने ये ना ईएमएफएस में पढ़ा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये वो बैंक्स होती हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज को हेल्प करती हैं. व्हाट टाइप ऑफ हेल्प? if you want to raise funds and if you don't understand from where we need to raise the funds, तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंक है ना आइडियाज देते हैं अच्छे. अच्छा, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे फंड्स को लगाना कहाँ है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है. मेट्रो स्टेशन बनानी है, मुझे गवर्नमेंट ने ऑफर दी है. क्या मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? पता नहीं कितना खर्चा आएगा. मेट्रो बनाने के लिए मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो ट्रेन है, ये सब बनाने के लिए टोटल मेरा खर्चा कितना जाएगा, कितना करोड़ों रुपए खर्चा होगा, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा. ये प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा, इस प्रोजेक्ट में अगर मेरी कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो मेरी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट होगा, ये कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, एक्सपर्ट से हेल्प ले लो. कौन एक्सपर्ट होता है इसमें? इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ये एक तरीके की बैंक है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं, कंपनीज को हेल्प करते हैं टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू रेज द मनी और वेयर टू इन्वेस्ट द रेज्ड मनी. जो रेस किया है मनी, जो हमारे पास जमा हुआ है, उसको कहाँ लगाना है. ठीक है. स्टार्टअप में रिसीव कैपिटल. स्टार्टअप्स जो कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप्स मतलब न्यूली लॉन्च्ड कंपनीज. तो स्टार्टअप्स जो होते हैं में रिसीव कैपिटल फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट इन एक्सचेंज फॉर पार्टनरशिप, सॉरी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप. अब आपको ये पता है वेंचर कैपिटल क्या होता है? ये मैंने आपको ईएमएफएस में शॉर्ट में बताया था. वेंचर कैपिटल मतलब ये वो होता है, ये वो कैपिटल मतलब फंड्स. कैपिटलिस्ट्स मतलब जो फंड्स लगाने वाले पर्सन होते हैं ना, उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट्स.
Am I clear with the concept? Yes or no? Come on, quickly answer me. इतना क्लियर है Yes, सबको? ma'am. हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो वेंचर कैपिटलिस्ट्स मतलब वो लोग जो नए कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में क्या चाहते हैं, एक्सचेंज में क्या चाहते हैं, ओनरशिप। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोला जाता है कि मतलब जब मुझे तकलीफ है, जब मुझे जरूरत है फंड्स की स्टार्टिंग में, तब तो कोई और तो लोग तो पैसे लगाएंगे नहीं ना। लोग तो पैसे लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें तो डर लग रहा है ना कि मेरी कंपनी तो अभी न्यू न्यू स्टार्ट हुई है, कल को डूब गई तो लोग तो किस में पैसे लगाना चाहते हैं? लोग किस में पैसे लगाना चाहते हैं? आपको अगर मैं ऑप्शन दूं तो आप किस में पैसे लगाएंगे? एक वेल ओल्ड इस्टेब्लिश्ड कंपनी। कंपनी में। हाँ, ओल्ड कंपनी में जो बहुत सालों से चल रही है और मुझे पता है कि ये अच्छी कंपनी है, कि जो नई कंपनी है उसमें आप लगाएंगे इतने सारे हार्ड अर्न्ड मनी? आप मुझे ऑप्शन दीजिए, कहाँ लगाएंगे आप? वेयर विल यू मैम इन्वेस्ट? ओल्ड कंपनी है। यस, वेल इस्टेब्लिश्ड ओल्ड कंपनीज। पर जो न्यू न्यू कंपनीज है उन्हें भी तो चांस मिलना चाहिए ना। तो हम जैसे लोग तो नहीं लगा सकते, पब्लिक तो नहीं पैसा लगाएगी उसमें। तो जब पब्लिक पैसा लगाएगी ही नहीं, शेयर होल्डर्स बनेंगे नहीं, शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे तो फंड्स भी नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूं? तो है ना, मेरे पास इतनी तकलीफ के टाइम पे जो मदद करने आते हैं ना, उन्हें एंजल्स कहते हैं। कहते हैं हम, मेरे मुश्किल समय में भगवान ने किसी एंजल को भेज दिया था मेरी हेल्प करने के लिए। सो ऐसी कंपनीज में जो पैसे लगाते हैं ना जरूरत के टाइम पे, उसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, और यू कैन से वेंचर कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, आईपीओ जिसे कह सकते हैं हम, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यस। सो लक्ष्मी प्रिया, आई सॉ यू बच्चा, यू रेज्ड योर हैंड। एनी डाउट? या आई कैन नॉट हियर यू बच्चा, विल यू बी लिटिल लाउडर? एनी डाउट? I think she is unmuting herself, but I am not able to hear. Somebody else can hear her? नो मैम। लक्ष्मी बेटा, आप है ना एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो, बिकॉज आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। डाउट क्लियर हुआ? ओके ओके, दैट्स गुड। पूछने से पहले ही क्लियर हो गया। ओके, दैट्स वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अदर केसेस, लास्ट पॉइंट देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस की नीचे, लास्ट पॉइंट। इन अदर केसेस कंपनी माइट बी ट्राइंग टू बजट देयर कैपिटल। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी होता है कि कंपनी अपने कैपिटल को बजट करती है, मतलब कहाँ कितना लगा सकते हैं, एंड डिसाइड विच प्रोजेक्ट टू फाइनेंस, मतलब कौन से प्रोजेक्ट में। अभी समझो मुझे एक प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पैसा नहीं डालना है, क्यों? कल को वो प्रोजेक्ट चला ही नहीं तो मेरे सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे, कॉमन सेंस। तो मुझे क्या करना है, डिसाइड करना है कि मेरे आगे ना 4 ऑप्शंस हैं और मुझे चारों अच्छे लग रहे हैं, ऑप्शंस मतलब प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब मुझे चारों के चारों बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, अपने फंड्स, मेरे पास जो कैपिटल है, फंड्स है, फाइनेंस है, उसको मुझे बजट करना है, मतलब देखना है कितने प्रोजेक्ट में कितना फाइनेंस लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड करना है। एंड विच टू पुट ऑन होल्ड, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको थोड़े टाइम के लिए रुका के रखने का, पुट ऑन होल्ड इन ऑर्डर टू ग्रो द कंपनी। हाँ, जब कंपनी बढ़ेगी ना तो मैं इस प्रोजेक्ट में ज्यादा लगा सकती हूँ, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ डिसीजंस फॉल अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर फॉल होते हैं। Is anybody having any doubt under personal finance and corporate finance? Yes, No, does ma'am. anybody have any doubt? Sure, आगे बढ़े, पब्लिक फाइनेंस पे जाएं। यस ओके, मैम। so look at this public finance now. नाम से ही समझ में आ रहा है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब, हाँ हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक से, पब्लिक के लिए ही। Suppose I am a government of India. Suppose, take an example. So it's my responsibility to see how much population is there. Out of such population, how many persons earn income? तो जो इनकम अर्न करेगा उसी से तो पैसा लेंगे।
ठीक है, अब इतने लोग इनकम अर्न करते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भर सकते? बेचारों की इनकम ही इतनी कम है कि टैक्स कहाँ से भरेंगे, घर ही मुश्किल से चला रहे हैं, लाइवलीहुड ही बड़ा उनका दिक्कत से चल रहा है, घर को ठीक से पाल नहीं पा रहे हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को। ठीक है, तो उन लोगों से तो हम टैक्स तो ले नहीं सकते, गवर्नमेंट को इतना तो समझता है। तो गवर्नमेंट सेग्रीगेट करती है कौन से लोग हैं जिनसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। टैक्स मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी विच इज टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम देयर इनकम्स। ठीक है, तो कौन से लोग हैं जो टैक्स भर सकते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट है ना, टैक्स वसूल करेगी आपसे। अब वो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो करोड़ों का अमाउंट जमा होता है ना टैक्स से, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जेब में डाल के लेके चली जाती है? नहीं, उन्हीं पैसों को, उन्हीं फाइनेंस, उन्हीं फंड्स को गवर्नमेंट स्पेंड करती है, रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन्स और बहुत कुछ ऐसा बनाती है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जो आगे चल के पब्लिक को ही काम आता है, ट्रेन्स, रेलवे स्टेशंस। सो ये सब को मेंटेनेंस करना, ये सब के लिए क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आएंगे, पब्लिक से। तो उसी को ही तो कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट पब्लिक से ही पैसा लेती है, पब्लिक के लिए ही लेती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, वो ही लिखा हुआ है पहली पहली पॉइंट में, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Federal government helps prevent market failure by overseeing the allocation of resources, distribution of income, economic stability. ये सब फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, ये देखना कि हमारी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, हालांकि इंडिया में होता नहीं है। Okay, but let me tell you, it is a role and responsibility of federal government to see whether the income is distributed properly. Okay, allocation of resources means optimum proper utilization of resources, and resources are allocated between every individual, every citizen equally. एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में ना अभी जैसे देखो, डीमोनेटाइजेशन जब भी आया था, डीमोनेटाइजेशन जब आया था तब इकोनॉमिक अनस्टेबल हो गई थी, अनस्टेबल। ठीक है, अब जैसे कोरोना वायरस आ गया, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ महंगा महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आ गया ना, इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई, कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब बंद बंद हो गया, तो जब ओपन हुआ तो सब महंगा हो गया, है ना। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है कि पब्लिक का जो फाइनेंस हमारे पास आ रहा है उसको देखना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आए हैं उसको कैसे एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, इकोनॉमिक स्टेबल कैसे रख, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे लानी है। ओके, रेगुलर फंडिंग इज सिक्योर्ड मोस्टली थ्रू टैक्सेशन। अब रेगुलर फंडिंग तो तभी होगी ना जब लोग बराबर टैक्स भरेंगे, तो टैक्सेशन से ही मेरी रेगुलर फंडिंग होती है। ठीक है, अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, सिर्फ टैक्स ही होता है जहां से पब्लिक फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट को? नहीं, सिर्फ टैक्स थोड़ी होता है, एयरपोर्ट पे जो सर्विस चार्जेस आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं उस पे भी तो आप चार्जेस भरते हो, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। अच्छा, आप लाइसेंस बनवाते हो, है किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस? पासपोर्ट है किसी के पास, पासपोर्ट? हम्म, कोई भी लाइसेंस है आपके पास? नहीं, नहीं लाइसेंस नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पापा के पास लाइसेंस है, मम्मा के पास, आपके सिबलिंग्स के पास लाइसेंस है ना? पूछना, आप उनसे जाके आज पूछना लाइसेंस की कितनी फीस भरते हो और कहाँ जाके भरते हो, वो बताएंगे। गवर्नमेंट का ऑफिस होता है इसका, लाइसेंस का एक अलग से, उधर जाके लाइसेंस इशू होता है और वो वहां पे चार्जेस भरनी पड़ती हैं। तो जाता किसके पास है, गवर्नमेंट के पास जाता है ना। फीस भरते हो आप, पेनल्टीज भरते हो। नॉन पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आज आपने नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, तो आपको क्या भरना पड़ा, 500 रुपए चालान निकला ना आपका, मतलब फीस, चार्जेस, पेनल्टी भरनी पड़ी। तो ये 500 रुपए कहाँ जा रहे हैं? कौन ले रहा है चार्जेस? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट आके नहीं लेती है, अलग अलग पर्सन को अपॉइंट करके रखती है एरिया वाइज। आप कलेक्ट करो, मुझ तक पहुंचा देना।
ठीक है, तो ये सबसे भी तो पब्लिक को फाइनेंस मिलता है, सॉरी गवर्नमेंट को फाइनेंस मिलता है, और उसी फाइनेंस को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। पासपोर्ट बनवाने जाते हैं हम, तो ये पासपोर्ट में जितनी फीस लगती है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, चलो खैर आधार कार्ड तो फ्री में बना था, ठीक है, किसी को कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं उसके लिए। बट अगर आप चेंज करवाने जाओगे भी, आधार कार्ड में ना एड्रेस चेंज करनी है, तो कुछ तो चार्जेस लगेंगे। गवर्नमेंट क्या फ्री में थोड़ी काम करेगी? जो गवर्नमेंट के ऑफिस खुले हुए हैं और जो क्या कह सकते हैं उसे, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मुफ्त में तो नहीं काम करेंगे, आपको कुछ तो फीस भरनी पड़ेगी उसके लिए, है ना? तो ये सारी फीस कहाँ जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज टू सी ये मनी को कैसे डे टू डे ऑपरेशंस में लाना है, मतलब कहाँ लगाना है, प्रॉपर कौन से एरिया में ये पब्लिक फाइनेंस यूज होना चाहिए। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? सो वी हैव थ्री फाइनेंसेस, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट मी क्विकली कम टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बहुत इजी है, फटाफट से कर लेंगे ये करके, फिर हम ब्रेक लेंगे। ओके, सो लेट मी कम टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, और इफ यू वांट वी कैन टेक 5 minutes ब्रेक नाउ एंड देन वी कैन बिगिन विद द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। व्हाट यू वांट? लगेगा इसमें 15-20 minutes लगेंगे मुझे। सो टेल मी व्हाट यू वांट। You want break for 5 minutes? Yes, ma'am. Yes, okay, no problem. Anyways, it is theory, so you should not feel bored about that. So let's take 5 minutes break and then we will continue. Is that okay with everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. 5-6 minutes break, huh? Okay. Don't leave the class, huh? Please don't leave the class. Okay, I will, ma'am. yeah, I will keep this room open. You be here only, and then we will start in 5 minutes. Yeah, see, sources of finance means, sources means where, what is the source? I mean, from where you get the finance, from where you get the funds, or you can say capital. So it is divided into three, what to say, it is segregated into three parts. Big, on the basis of time, on the basis of ownership, and on the basis of source of generation. From where it is getting generated, that is known as source of source means from where it comes, that is known as source. And ownership means it is divided into two parts, then owned and borrowed, if you can see here. The one which I had explained, which I have explained you in the slide of corporate finance, if you remember. Okay, and the one which is on the time has been divided into long term, medium term, and short term. Okay, so let's quickly start with basis of time. Now we have, on the basis of time, we have three segregations here: long term, medium term, and short term. Now what is long term? Long term means for more than 5 years. Now if you invest in equity shares, company is getting funds, company is getting funds from you in the form of equity shares. That means you purchase equity shares of my company and invest the money in my company. This is how equity generates, no? So it comes in long term. Preference shares also comes in long term. Internal accruals means reserves of the company. That is also long term. Debenture and bonds, that are also for long period of time. Term loans. Now term loan means 1 to 3 years can be a term loan. Less than 1 year can be a term loan. Term means the term is fixed. That means for 5 years, for 10 years, for 2 years, some term or some time period is decided, and that is known as term loan. Okay, so but here we are talking about long term. Therefore, this term loan will stand for long term loan, more than 5 years. Okay, venture finance funding. Venture funding means angel investors.
those who invest in startup companies, newly launched companies. Asset securitization. Now, suppose you have a land and a building constructed there, but now you don't want that building as an ownership, as you want to invest in that building. तो अभी आप उसको कन्वर्ट करेंगे एसेट के फॉर्म में, सिक्योरिटाइजेशन कराएंगे उसकी. तो एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है वो. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मुझे अकेले उसका वो ओनरशिप नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को ना, बिल्डिंग के नाम पे शेयर्स निकालूंगी मैं. एग्जाम्पल, बिल्डिंग के नाम पे मैंने शेयर्स निकाल दिए पूरी. ठीक है, बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग है और शेयर्स निकाल दिए मैंने उस पर, उसके नाम पर मार्केट में लगा दिए शेयर्स. अब जो जो खरीदेगा तो मुझे फंड्स मिलेंगे, और उन्हीं फंड्स पे से मैं बिल्डिंग को रेनोवेट करवा सकती हूँ, या फिर कहीं और कोई और लैंड पे कुछ और हम लोग उसी फंड्स में से एसेट्स जनरेट कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज एसेट सिक्योरिटाइजेशन. ओके, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना है, शॉर्ट में बस एक एक पॉइंट आपको समझते जाना है. इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी होती है जो बाहर, मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ होती है. यस, बिल्कुल, इंडिया में वो भी फाइनेंस होता है. जैसे यूरो इश्यूज होते हैं, यूरोज इशू होते हैं, फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस होते हैं. मतलब आपको आज डॉलर का रेट आपने देखा कम हो गया, बढ़ गया, तो आपको इन्वेस्ट करना है उसमें. ठीक है, जैसे आप अर्न कर सके डॉलर्स में. लोन्स भी होते हैं ना, बाहर किसी और आपको बैंक से लोन लेना है जो कि आउट ऑफ इंडिया में है, ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. ADR, GDR. ADR is American Deposit Receipt and GDR is ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, ये बहुत डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए. अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, और नंदिनी मैम आपको IBF में ऑलरेडी करवाने वाले हैं. ये ना डिपॉजिट रिसिप्ट्स होते हैं. डिपॉजिट रिसिप्ट्स मतलब एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें अगर आपने सपोज कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, सपोज ADR में इन्वेस्ट किया, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट. तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट मतलब सिर्फ अमेरिका के मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, US में. और GDR मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, ग्लोबल. आप किसी भी डिपॉजिट रिसिप्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जापानीज में हो, जापान का हो वो, या फिर यूरोप का होने दो, लंदन का होने दो. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो मतलब ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है. ठीक है, कोई भी आके कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. एंड ADR का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट. मतलब डिपॉजिट रिसिप्ट का मतलब होता है एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट होता है. ठीक है, और क्योंकि अमेरिकन है तो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ग्लोबल है तो जिस कंट्री के डिपॉजिट रिसिप्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके करेंसी के फॉर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी. समझो आपने UAE, दैट इज दुबई, आपको पता होगा UAE क्या होता है. दुबई का ये सिंबल है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्रोनॉम है. सो दैट इज UAE. ठीक है, अगर आपने उसके ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इन्वेस्टमेंट किया तो द्राम्स में आप, मतलब जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे तो वो द्राम्स में होगा. ठीक है, US में करेंगे तो डॉलर्स में होगा. ठीक है, और यूरोप में करेंगे तो यूरोज में होगा. ठीक है ना, समझ आ रहा है एग्जाम्पल के जरिए. यस, तो लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 इयर्स. तो ये सारे ना मोर देन 5 इयर्स के लिए होते हैं. मीडियम टर्म में आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर्स. मीडियम टर्म होता है 1 to 3 इयर्स. सॉरी, मीडियम टर्म होता है मोर देन 1 ईयर इज फॉर 1 ईयर शॉर्ट टर्म, 1 to 5 years medium term and more than 5 years long term. Yes, so short term किसके लिए होता है, less than 1 year और 1 year. Okay, और जो 1 to 5 years के बीच में होता है वो मीडियम टर्म होता है, और जो more than 5 years होता है वो लॉन्ग टर्म होता है. अब मीडियम टर्म में आ जाओ, मतलब 1 to 5 years के बीच में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे तो वो मीडियम टर्म में आ जाएगा. अब आप बोलोगे मैम प्रेफरेंस शेयर्स तो यहाँ भी है और यहाँ भी है. हाँ, तो हो सकता है ना आपने 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो तो मीडियम टर्म, लेकिन 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म. सो इट डिपेंड्स ऑन
the term for which you have invested. Debenture and bonds, okay. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म लोन्स, जैसे 1 to 5 years के लिए आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, गवर्नमेंट से लोन ले लिया, कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। लीज फाइनेंस, लीज फाइनेंस मतलब आपको मैंने ये ईएमएफएस में समझाया था, लीज का मतलब होता है रेंट। आपके पास बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स है, आप उसको रेंट पे रख दो तो आपको पैसा मिलेगा ना, वहां से रेंटल इनकम मिलेगी ना। ये लीज मतलब बात चल रही है बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज के बारे में। तो आपका बिजनेस ही है, आप लीजिंग कंपनी में हो, तो आपका बिजनेस क्या है, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो बिजनेस के लिए काम आती है। अब आप क्या करते हो, वो अलग अलग कंपनीज को रेंट पे देते हो, पर रेंट है ना इसका थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब 1 साल का कोई रेंट नहीं होता है इसका। जैसे घर खरीदना होगा रेंट पे तो हम 1 साल के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब 3 years 5 years, ठीक है। तो ये लीज फाइनेंस है ना, मीडियम टर्म में आता है। हायर परचेस, आपको मैंने ये बताया था, हायर परचेस भी लीज का ही होता है, पर लीज में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरीज लीज होते हैं, रेंट पे जाते हैं। लेकिन हायर परचेस में क्या होता है, गुड्स, मतलब आपने ना सामने वाले से गुड्स खरीदे हैं, अब आपको ना एक साथ पेमेंट करना को नहीं जम रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 लाख का अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट है, अब इतना बड़ा अमाउंट में एक साथ कैसे पे करूं। गुड्स तो मैंने आपसे खरीद लिए, मैं रिटेलर हूँ, आप होलसेलर है, तो मैं आपसे हायर परचेज कर रही हूँ, मतलब हायर कर रही हूँ, मतलब रेंटल बेसिस पे। आप एग्जैक्टली इसको रेंट तो नहीं बोल सकते, बट इंस्टॉलमेंट्स। अब इसमें कैसे पेमेंट करूंगी मैं आपको, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी 3 years 4 years ऐसे पीरियड के लिए डिसाइड होता है हायर परचेज। चलो अभी आ जाओ शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म मतलब 1 year के लिए छोटा मोटा कोई आपने कोई लोन ले लिया, किसी से अमाउंट ले लिया। अब देखो ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ट्रेड माना बिजनेस, बिजनेस में क्रेडिट भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, आजकल हर बिजनेस तो क्रेडिट पे ही चल रहा है लगभग। होलसेलर रिटेलर होलसेलर से खरीद रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, तो ट्रेड क्रेडिट ही तो चलता है उसमें। मतलब क्या है ट्रेड क्रेडिट का मतलब, आज खरीद के जाओ गुड्स, पेमेंट आप धीरे धीरे टाइम पे देते जाना, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आप अमाउंट को सेटल करते जाना। उसको ही तो कहते हैं क्रेडिट पीरियड। सो सपोज मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 year या फिर 1 year, तो चलो लेस देन 1 year का एग्जांपल ले लो, 6 months। मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया 6 months, तो मतलब आज आप मुझसे गुड्स खरीद के जा रहे हैं और पेमेंट कब करोगे, 6 months। मतलब मेरी कंपनी के पास तो 6 months के बाद पैसे आएंगे ना। सोर्स मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो अ मोड of collecting the funds. Short term loan like WC working capital loan, WC मतलब working capital। अब मुझे ना कंपनी को रोज खर्चे करने के लिए ना थोड़े फंड्स शॉर्टेज में पड़ गए। हर महीने का खर्चा होता है ना, सपोज हर महीने का खर्चा होता है मेरी कंपनी का 2 लाख रुपए, पर मेरे पास है ना 1.5 लाख रुपए है, 50,000 कुछ कम पड़ गए, तो मैं क्या बिजनेस बंद कर दूं, नहीं। तो क्या करूंगी मैं, शॉर्ट टर्म ले लूंगी, शॉर्ट टर्म लोन ले लूंगी, कितना, 50,000 का, ठीक है। कितने पीरियड के लिए, 1 month के लिए, 3 months के लिए, 9 months के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, लाइक WC लोन। WC मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब रोजाना बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है ना, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 1 year। आपको साइन दिख रही है इक्वल्स टू और लेस देन की, Yes, ma'am. यस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है या तो 1 year या तो लेस देन 1 year, वो मैंने आपको क्राइटेरिया पहले ही बता दी। अब जो जो यहाँ पे फिट हो रहा है ना, वो लेस देन 1 year ही होगा या मैक्सिमम 1 year तक, 12 months। तो आपने कहीं लोगों को बोला कि मैं फिक्स डिपॉजिट स्कीम ओपन कर रही हूँ, क्या आप पैसे लगाना चाहेंगे, आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग बड़े खुश होके आ गए आपके पास, और फिक्स डिपॉजिट की आपने रिसिप्ट जनरेट की, आपने फंड्स कलेक्ट किए और रिसिप्ट आपने पब्लिक को दे दी, इन्वेस्टर को दे दिया, हो गया ना 1 year का फिक्स डिपॉजिट। मतलब आपने लोगों को फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट दिया और उसके अगेंस्ट में लोगों ने आपको फाइनेंस दिया, आ गए पैसे हमारी कंपनी के पास। सोर्स मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं,
ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं कंपनी में पैसे ला सकती हूँ, फंड्स को जनरेट कर सकती हूँ. एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. अब बोलो, अब मेरा कस्टमर आया, उसने बोला मुझे इतने इतने गुड्स चाहिए. अच्छा, तो मैंने कैलकुलेट किया, अमाउंट होता है 5 लाख रुपए. अब मैं बोलूंगी 5 लाख रुपए तो ज्यादा अमाउंट है, आप थोड़ा एडवांस तो देके जाइए. तो कस्टमर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एडवांस ले लो आप, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए एडवांस ले लीजिए. तो आ गया मेरे पास, उतना फाइनेंस आ गया. ठीक है, अभी तो मैंने गुड्स बेचे भी नहीं है और पहले ही मुझे कैश मिल गई. क्रेडिटर्स, मुझे पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को, पर आज नहीं करनी है मुझे, 2 महीने बाद करनी है, फिर 3 महीने बाद करनी है, फिर 4 महीने बाद करनी है. तो है ना आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्रेडिट पीरियड का. तो क्रेडिटर्स को भी आप बाद में पे कर सकते हैं. पेबल्स, बिल्स पेबल्स आपने सुना होगा, बिल्स पेबल्स, वो भी आपके क्रेडिटर्स ही होते हैं पर बिल के फॉर्म में, बिल के फॉर्म में. ठीक है. फैक्टरिंग सर्विसेज, ये हमने ईएमएफएस में बहुत अच्छे से सीखा है. फैक्टरिंग सर्विसेज, आप फैक्टर एक एक्सपर्ट होता है जो आपको गाइड करता है, एडवाइजर्स देता है कि बिजनेस को कैसे, फैक्टरिंग मतलब व्हाट टू से, एक फैक्टर अपॉइंट करते हो आप जो आपको फैक्टरिंग सर्विसेज देता है रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल्स, हाउ टू मैनेज द फंड्स, हाउ टू कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, व्हाट शुड बी द क्रेडिट पीरियड. ओके, उससे कहते हैं फैक्टरिंग सर्विस. तो वो सारी सर्विसेज आपको देता है, मतलब वो जनरेट करके देगा कैश पहले से ही, नीड पड़े उससे पहले ही आपके पास फंड्स जनरेट हो जाए कंपनी में. ठीक है, ये ऐसी सर्विसेज आपको फैक्टर देता है. नेक्स्ट इज बिल्स डिस्काउंटिंग. बिल्स डिस्काउंटिंग मतलब आज है ना आपको फंड्स की नीड पड़ी कंपनी को, तो बैंक के पास चले जाओ, बिल्स लेकर बेच दो बैंक को बिल्स, आपको सारी कैश मिल जाएगी डिस्काउंट काट कर. ये आपने ऑलरेडी ईएमएफएस में सीखा है. होप यू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, और डिटेल में कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मुझे बताइए. लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इसमें आप मुझे बताइए कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड है. Although I have covered everything, but still if you have any doubt, please clear it out right away. No, ma'am. Okay, very good. And others? हाँ या नहीं तो बोल दो सिर्फ. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आगे बढ़े. बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. कंट्रोल तो वही करेगा ना जिस जो ओनर होगा बिजनेस का. ठीक है, अथॉरिटी कंट्रोल करने की तो उसी को ही होती है जो ओनर होता है बिजनेस का. सो यू हैव टू कीप इन माइंड ओनरशिप. कंट्रोल तो अपने साथ चला आया, ओनरशिप आ गई तो ठीक है. लेकिन इसमें ना दो चीजें होती हैं जो मैं आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के टाइम पे ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, बट स्टिल यहाँ पे आया है तो मैं फटाक से 2 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ. ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स. ओन्ड फंड्स मतलब प्रोप्राइटर फंड्स मेरे खुद के, और बोरोड मतलब जो कम पड़ गए तो मैंने कहीं और से लोन के फॉर्म में रेस कर दिया, डिबेंचर के फॉर्म में रेस कर दिया. अब ओन्ड में क्या क्या होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, बचा हुआ पैसा, रिटेन्ड बचा हुआ, लेफ्ट ओवर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, रिटेन्ड लेफ्ट ओवर बचा हुआ, छूट गया जो पैसा जो यूज में नहीं आया. ठीक है, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स मेरी कंपनी को इस बार यूज में नहीं आए वो बच गए, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स. रिटेन्ड अर्निंग्स बचा हुआ प्रॉफिट, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट. ठीक है, अब जो बच गया उसको मैं क्या करूं? रिजर्व्स में डाल देती हूँ मैं, उसको मैं रिजर्व करके रखती हूँ फ्यूचर के लिए कि कभी तो यूज आएगा. आप भी ऐसे ही करते हो? पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं, अब महीने भर की पॉकेट मनी से कुछ 500 रुपए बच गए तो आप क्या करते हो? 500 रुपए मम्मी पापा को वापस दे देते हो? इतने शरीफ तो हम हैं नहीं, है ना. तो हम क्या करते हैं? 500 रुपए सेव करके रख लेते हैं कि मे बी नेक्स्ट मंथ में मुझे कुछ खरीदने की जरूरत पड़े एक्स्ट्रा, है ना. सही एग्जाम्पल है कि नहीं है? अच्छा, Yes. नहीं तो आप हर Ma'am. महीने, या नहीं तो आप क्या करते हो? हर महीने की 500 रुपए की कंपलसरी सेव करके रखते हो, खर्चा नहीं करते हो. और जब 500 500 500 करके आपके पास 40,000 20,000 जमा हो जाता है, जाके मोबाइल फोन खरीद के आते हो. सो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब वही तो होता है कि आप बचाने की कोशिश करते हो या बच गया, उसको हम रिजर्व करके रखते हैं कल के लिए, 1 महीने के बाद के लिए, 2 मंथ्स के बाद के लिए.
So maybe for future period. Okay. Next is convertible debentures. जो debentures convert हो सकते हैं ना, वो owned funds होते हैं, ध्यान देना. हाँ, ओन्ड फंड्स होते हैं जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं. मैम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? ये वो स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड में लिया था किसी ने एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट. यस मैम. हाँ, तो कन्वर्टेबल Yes, डिबेंचर्स ma'am. क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सिर्फ मीनिंग बता दो. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. वेरी गुड. हु आंसर्ड मी दिस? हु वाज शी? प्रियंका मैम. प्रियंका. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. हार्डली सम स्टूडेंट्स रिमेम्बर. हाँ, हार्डली एनी स्टूडेंट रिमेम्बर्स. वो बोलते हैं मैम 12th में पढ़ के आए, अभी थोड़ी याद है. पता नहीं कैसे याद नहीं रहता है. मीनिंग समझोगे ना किसी भी चीज की, आपको लाइफ टाइम वो चीज याद रहती है, क्योंकि आप मीनिंग समझ ले रहे हो, उसकी रट्टा नहीं मार रहे हैं. ठीक है. तो अब आपके पास क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है. मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? जो डिबेंचर्स फ्यूचर में चल के शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो कॉमन सेंस से जब वो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो वो मेरा ओन्ड कैपिटल बन जाएगा. कॉमन सेंस है, इसीलिए वो ओन्ड कैपिटल होता है पहले से ही. ठीक है. वेंचर फंडिंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये ओन्ड में ही होती है. हमेशा याद रखो, जो वेंचर कैपिटल बता दो लॉन्ग टर्म में, देखो वेंचर कैपिटल पहले तो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है. उसके बाद अगर बोलेंगे ना वो ओन्ड होती है कि बोरोड होती है, वो ओन्ड होती है. हमेशा याद रखो, वेंचर कैपिटल के बदले आपको ओनरशिप चाहिए. ये हमने पहले भी पढ़ा. इन द एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप पढ़ा था ना वेंचर कैपिटल में. ये देखो, ये वाली पॉइंट पे हमने कहीं तो पढ़ा था वेंचर कैपिटल. किसी को दिख रहा है क्या? कहाँ पढ़ा था वेंचर कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ दैट? हाँ, ये रहा. देखो, स्टार्टअप कंपनी में जो आप वेंचर कैपिटल लगाते हो, उसके एक्सचेंज में आपको ना परसेंटेज ऑफ ओनरशिप चाहिए होती है. लिखा है? बराबर है? क्लियर हुआ? यस मैम. सो वी हैव नेक्स्ट बोरोड. बोरोड में तो 2-3 चीजें ही होती हैं. लोन ले लो कहीं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कमर्शियल लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो. ठीक है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक भी आ गया. अच्छा, नेक्स्ट इज डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब बोरोड फंड्स होते हैं. नेक्स्ट, बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन. अब जनरेट कैसे करते हो आप इसको? कैसे जनरेशन की बात करें तो ये वो जनरेशन की बात नहीं चल रही है, ग्रैंडफादर देन सन. मैं वो जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ. जनरेट मतलब क्रिएट. ठीक है. सोर्स ऑफ क्रिएशन मतलब कैसे क्रिएट होता है? 2 तरीकों से क्रिएट होता है ये, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर ही और कंपनी के बाहर से. ठीक है. तो देखो, अभी कंपनी के अंदर से इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वेंचर कैपिटल. ये जो हमने यहाँ पढ़ा ना ओन्ड में, वो ओन्ड ही तो है जो इंटरनल सोर्स होता है. मतलब ओन्ड मेरा इंटरनल सोर्स ही होता है. अच्छा, तो एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर से कहाँ से फंड्स क्रिएट करते हैं हम लोग? रिटेन्ड प्रॉफिट्स, जो मेरी किसी और ब्रांच में या किसी और जगह पे मेरे प्रॉफिट्स रहे हुए हैं, रिटेन्ड लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स हैं, जो अभी तक मुझे जनरेट नहीं हुए थे, अभी होने वाले हैं. ठीक है. रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैंने अपने खर्चों को कम करने की कोशिश की तो अपने आप प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, अपने आप फाइनेंस मेरे पास ज्यादा क्रिएट होने लगेगा. सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स मतलब मैंने से पुरानी फर्नीचर, पुराना व्हीकल, पुराना कंप्यूटर्स, पुराने सारे कंप्यूटर सारे बेच दिए मैंने, तो मुझे फंड्स जनरेट हुए कि नहीं हुए? क्रिएट हुआ फंड का अक्यूमुलेशन, है ना? जनरेट हुए ना फंड्स मुझे एक्सटर्नली, मतलब बाहर से, मार्केट से. Yes, ma'am. यस. सो आई टोल्ड यू, देखो 15-20 मिनट्स में पूरा क्लियर हो जाएगा. चार्ट बड़ा दिख रहा है पर है बहुत इजी. ठीक है. चलो, सो लेट्स नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट स्लाइड में है आपका वेंचर कैपिटल. अब ये वेंचर कैपिटल तो अभी तो पढ़ा मैम, थोड़ा अभी डिटेल में दिया हुआ है. वहां पे सिर्फ एक पॉइंट दी हुई थी, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है. सो जस्ट 1 स्लाइड, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा पता होना चाहिए कि वेंचर कैपिटल क्या होता है.
वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फॉर्म में होता है, प्राइवेट इक्विटी कैपिटल होता है ये, मतलब पब्लिक नहीं, मतलब गवर्नमेंट नहीं लगाती है इसमें पैसा, प्राइवेट कोई भी और कंपनी, कोई और एंजल इन्वेस्टर आता है आपके पास और वो पैसे लगाते हैं। टिपिकली इट इज प्रोवाइडेड बाय आउटसाइड इन्वेस्टर, अपनी कंपनी का कोई शेयर होल्डर कर रहा है तो उसको वेंचर कैपिटल नहीं बोलते, आउटसाइड इन्वेस्टर, जैसे बैंक। अच्छा, तो बैंक आई आपके पास, तो आपके पास मतलब न्यू बिजनेस के पास, उसने प्रॉमिस किया कि हम जल्दी से जल्दी अपनी बिजनेस में ग्रोथ लाएंगे, ठीक है। सो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली हाई रिस्क, क्योंकि न्यू कंपनी ओपन हुई है ना, पता नहीं आगे कितनी चलेगी, हाई रिस्क है, बट ऑफर, क्योंकि न्यू कंपनी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा रिटर्न्स जनरेट करेगी, जब बढ़ेगा तो, जब कंपनी बढ़ेगी तो जनरेट जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। सो दैट्स व्हाट ही सेज, ओके। वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी and type of financing that investor provide to startup companies. Please remember, you can say startup company, you can say newly launched companies or new businesses. हाँ, पर जो न्यू होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, तो ये वाली पॉइंट पे बड़ा ध्यान देना है। जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना वो स्मॉल बिजनेस होते हैं, क्योंकि वो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज नहीं है, अभी मार्केट में बेचारी अभी न्यूली बॉर्न हुई है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, छोटा छोटा होता है ना, so small business, okay. So startup company and small businesses that are believed to have long term growth potential, उनका ऐसे हम सोच के चलते हैं कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में बढ़ेगी, अगर आज इसको पैसा लग दिया तो इसको फंड्स की नीड है, अगर फंड्स हमने दिए तो ये फ्यूचर में पक्का ग्रोथ करेगी, इसको इतना पोटेंशियल पावर है, ठीक है। वेंचर कंपनी जनरली कम्स फ्रॉम वेल ऑफ इन्वेस्टर्स, वेल ऑफ जो हमारा अच्छा सोचते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मैंने आपको बताया था ना, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं जो आपको आइडियाज देती हैं, गाइडेंस देती है, फंड्स भी देती हैं। किसको फंड्स देती हैं? स्टार्टअप कंपनीज को, स्मॉल कंपनीज को, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, तो उसे क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल ही तो कहते हैं, अगर फंड्स ऐसी बैंक्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं तो। अच्छा, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। हाउएवर इट डज नॉट ऑलवेज टेक अ मॉनेटरी फॉर्म, जरूरी नहीं है मॉनेटरी फॉर्म में ही हो, मतलब आपको फंड्स देकर, कैपिटल देकर वो आपको जरूरी नहीं है हेल्प करे, they can also provide you help in the form of technical or managerial expertise, टेक्निकल गाइडेंस दे दिया कैसे सॉफ्टवेयर को जनरेट करने का, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज दे दिया कंपनी को कैसे चलाने का, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये भी तो वेंचर कैपिटल ही हो गया ना, जरूरी नहीं है वो मॉनेटरी फॉर्म में ही हो, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज टिपिकली एलोकेटेड टू स्मॉल कंपनीज, ये मैंने पहले भी क्लियर किया, विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। हाँ, मतलब हमको ऐसे लगता है कि हम ये पैसा आज लगाएंगे तो कल कंपनी ग्रोथ करेगी, और टू कंपनीज दैट हैव ग्रोन क्विकली, मतलब थोड़ा जल्दी इसकी ग्रोथ जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी कंपनी की ग्रोथ जल्दी हो सकती है, ठीक है। एंड अपीयर poised to continue to expand, मतलब ऐसे दिख रही है, अपीयर मतलब इट सीम्स लाइक, हम बोलते हैं इट सीम एज इफ आई एम नॉट ओके टुडे, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है आई एम नॉट ओके टुडे, सो हम कहते हैं सो दैट इज अपीयर। सो अपीयर poised to continue to expand, मतलब अगर आज हमने इस कंपनी में फंड्स जनरेट किए, सो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी आगे चल के एक्सपैंड करती रहेगी, कंटिन्यू टू एक्सपैंड, मतलब एक बार एक्सपैंड नहीं, कंटिन्यू टू एक्सपैंड, वो बोलते हैं कंटिन्यू टू फ्लरिश, दिस कंपनी इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, है ना। तो वेंचर कैपिटल इसमें बिलीव, वेंचर कैपिटलिस्ट्स इसमें बिलीव करते हैं, एंड देयरफॉर वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं न्यूली लॉन्च्ड कंपनीज में, स्मॉल कंपनीज में, तो उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फाइनेंसिंग, ओके। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, या फिर मिक्स्ड। अब मैम कॉम्बिनेशन ऑफ बोल के आपने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या? हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन वो तो पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा ना, 2-3 चीजें कि 4-5 चीजें, बहुत
सारी चीजों का भी मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ये तो नहीं कह सकती मैं, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ बोल के छोड़ दिया। अच्छा, अभी हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स। अब या तो आपके पास ऑप्शन है, कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है, ठीक है, कि है ना, मैंने ना मार्केट में इक्विटी शेयर लगाए हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपने इक्विटी खरीद लिया। अब कुछ लोग आए डिवेंचर्स खरीदने के लिए, कुछ लोगों ने कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है, जैसे बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है। तो ये तो एक एक चीज हो गई ना, या तो इक्विटी शेयर, या तो डिबेंचर, या तो बैंक लोन। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इक्विटी एंड डेट। देखो, हाइब्रिड फाइनेंसिंग डेफिनेशंस इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। पहली बात तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ, ये वो फाइनेंस होता है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स, दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। किसके? डेट मतलब बोरोड फंड्स, इक्विटी मतलब ओन्ड फंड्स। ये देखो, सोर्स में ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स है ना, तो दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, समझ में आया? टू एंड्स विद इन द फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम, ये दोनों फाइनेंशियल के स्पेक्ट्रम में एक साथ आते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे आपको सिक्योरिटी मिले। अब एग्जांपल ले लो, सिर्फ मैंने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया या प्रेफरेंस शेयर्स में लगाया, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है ना ओन्ड फंड्स है, हाँ, यहाँ पे इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं, ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स का दूसरा नाम होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो पर्सन्स जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, और इक्विटी शेयर्स का मतलब वो शेयर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी, सिर्फ इक्विटी बोले तो प्रोप्राइटर फंड्स, सिर्फ डेट बोले तो बोरोड फंड्स, ठीक है। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया। डेट एंड इक्विटी का मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स। अब अगर मैंने सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क ज्यादा है, रिटर्न्स पता नहीं, जब प्रॉफिट होगा तो रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अगर मुझे डेट भी देना है कंपनी को, तो थोड़ा मिक्स करके कंपनी आपको हाइब्रिड फाइनेंसिंग का स्कीम देती है। मतलब आप दोनों में थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं होता है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा लगाया, ऐसे होता है कि उसका नाम ही होता है हाइब्रिड फाइनेंस, ठीक है। फिर इस हाइब्रिड फाइनेंस के अंदर अलग अलग स्कीम्स होती हैं कि कितना प्रपोर्शन इक्विटी होगा, कितना प्रपोर्शन डेट होगा। किसी को 40% डेट चाहिए और 60% इक्विटी चाहिए, किसी को 50-50 चाहिए, किसी को 40-60 चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड फाइनेंसिंग इज वेयर इक्विटी एंड डेट मीट इन द मिडल, दोनों बीच में आते हैं, दोनों कैपिटल को बीच में लाया जाता है, ऑफरिंग इन्वेस्टर्स द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ बोथ, दोनों के बेनिफिट्स उस इन्वेस्टर को दिए जाते हैं। अच्छा, दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, ठीक है। रिस्क भी आप देखोगे तो दोनों में इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा होती है, वेयरएज बोरोड फंड्स में रिस्क उतनी नहीं होती है जितनी इक्विटी में होती है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ टाइप बट द बेनिफिट्स इंक्लूड एक्सेस टू कैश, मतलब आप इजी, आपको जनरेट होगा कैश, क्यों? क्योंकि आपने इक्विटी के साथ साथ डेट में भी पैसा लगाया, मतलब हर महीने आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा वहां से, कंपनी से। एसेट कंडक्टेड विद बोथ इक्विटी एंड डेट फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए ये भी अच्छा है कि दोनों एसेट्स मेरे लिए हो गई ना, इक्विटी भी डेट भी, ठीक है। और ये वो हाइब्रिड फाइनेंसिंग ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्ट करती हैं हु कैन प्रोवाइड रेगुलेटरी और टैक्स बेनिफिट्स, जिनको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए वो हाइब्रिड फाइनेंसिंग में जाते हैं। अभी आपको डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी टैक्स बेनिफिट उनको कैसे मिलता है, ये हम जब भी टैक्स पढ़ेंगे ना तब आप समझ जाएंगे अपने आप। या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी में ही हम एक 4th या 5th चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब वो करेंगे ना तब समझ जाएगा आपको कि कंपनीज हाइब्रिड फाइनेंस में जाती है तो टैक्स बेनिफिट कैसे मिलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? वो जब आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे ना तब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, वो पीछे है ना प्रैक्टिकल चैप्टर्स, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा,
ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी करना है कि कल फिर कंटिन्यू करें? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस है, फंक्शंस है, एंड लास्ट स्लाइड आपकी होगी प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपैरिजन चार्ट के साथ। मतलब 2-3 स्लाइड्स ही आप ऐसे समझिए। तो टेल मी, अभी करना है और we can have it tomorrow also. You guys tell me. Come on, quickly. अभी करना है कि कल करना है? Guys, you need to answer me. Come on. It's okay, आप कल के लिए भी बोलेंगे तो, but you need to answer. ओके, नो प्रॉब्लम, कल करते हैं। कल फिर मैं एक लेक्चर रखूंगी तो ये पूरा का पूरा एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। कल मेरा फिर एक लेक्चर होगा, वो हम पोस्ट करेंगे टाइम टेबल, डोंट वरी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अटेंडेंस लिंक किसी ने पूछा तो नहीं डाली अटेंडेंस लिंक? लक्ष्मी प्रिया, नो मैम। बच्चा डाल दो, अटेंडेंस लिंक डाल दो। एक्चुअली ना आते ही आप सुबह को या तो फिर निकलते समय 15 मिनट पहले आप एक टाइम फिक्स कर दो, ठीक है। मेरे हिसाब से ना आप एंड में ही डाला करो अटेंडेंस लिंक, जैसे 15 मिनट्स पहले। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे स्टार्टिंग में अटेंडेंस करके फिर क्लास से निकल जाएंगे, विच इज नॉट वेरी गुड ऑप्शन। सो आई फील आप 15 मिनट्स लेक्चर खत्म होने के पहले डाल दिया करो। So I'm giving you time to fill the attendance, and then we will begin again. I mean, I will then stop the lecture. Okay, भरा सबने? Shall we end the lecture now? Uh, 10 to 11, 11 to 12, 50. आप अलग अलग भरो ना, 2 बार भरो। देखो 10 to 10:50 का अलग से आप एक बार लिंक को सबमिट करना, और फिर 11 to 11:50 फिर से सबमिट कर दो। 10 to 10:50, 11 to 11:50, 11 to 12:50 नहीं है बच्चा। It is 10 to 10:50 one lecture and 11 to 11:50 another lecture. क्योंकि आप है ना दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको 2 बार लिंक को भर के सबमिट करना पड़ेगा। Is it now clear everyone? यस मैम। Okay. So shall we end the lecture now? सबने भरा 2 बारी? यस मैम। Okay.